السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم یسر لنا ولا تعسر علینا، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے جو درس دینے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے کہ لبس الحلقہ، یعنی یہاں اس درس کے اندر کہا گیا ہے کہ لبس الحلقتی والخیتی ونحوہا یا ونحوہما۔ مزید اگر اضافہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لرفع البلائی او دفعہ، کہ انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ جب کوئی بیماری اس کو آ پڑتی ہے تو وہ کرنے لگتا ہے۔ یہاں جو صاحب کتاب نے کہنا چاہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا یعنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یا مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی شخص چھلا لٹکائے یا دھاگا باندھ لے یا اس جیسی کوئی چیزیں باندھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ چھلا لوہے کا ہو یا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو یا نگینے کا ہو یا دوسری چیزوں سے ہو، یا ایسے ہی دھاگا باندھے تو اس دھاگے کا معاملہ کیا ہو، یا تو وہ صوف کا بنا ہو یا تانت وغیرہ کا ہو یا جو بھی چیزیں ہوں۔ زمانِ جاہلیت کا معاملہ یہ تھا کہ زمانِ جاہلیت میں اہل عرب ان چیزوں کو، دھاگوں کو باندھتے تھے، سونے و چاندی یا نگینوں کو پہنتے تھے یا لوہے کے کیا نام ہے چھلے کو پہنتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس سے پریشانی سے دور رہنے کے لیے اس کو باندھتے تھے، یا ایسے ہی نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے یہ سارے اعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور وہی اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اسی اللہ سے ہی ہم لوگ اپنی لو کو لگاتے ہیں، اپنی امیدیں اس سے اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی رحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورہ زمر کی یہ 38ویں آیت ہے، 38ویں اور 39ویں آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان نادانوں کو سمجھائیے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، یا ایسے ہی او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
कुलिद वल्लाहु ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। सूरह इसरा की ये 56 नंबर की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो, कुलिद वल्लाहु ज़अमतुम मिन दूनिही, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जिसको तुम माबूद समझ रहे हो, फला यमलिकूना कश्फ ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला, उन माबूदों का मामला और उन्हें तुम पुकारो लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, यानी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम माबूद समझ करके उनको पुकारते हो, वो तुम्हारी परेशानी को दूर करने के मालिक नहीं हैं, तुम्हारी परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं। वला तहवीला, और ना ही तुम्हारी परेशानी को तुमसे बदल सकते हैं, अब ख़त्म कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा की 56 नंबर आयत में फरमाया। इन दोनों आयत से ये पता चला कि आदमी कोई छल्ला बांधे या कोई धागा बांधे या इस तरह की दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करे बला को टालने के लिए, फ़ायदे को पाने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए, तो इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी हैं। वो कहते हैं कि अना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रजुलन फ़ी यदिही हलक़तुम मिन सुफ़रिन। एक आदमी का मामला ये था कि उसने देखा, क्या देखा? हलक़तुम मिन सुफ़रिन। फ़क़ाल मा हाज़िही? क़ाल मिनल वाहिना। क़ाल इंज़िअहा फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन उम्बुज़ुहा अन्क फ़इन्नका लौ मुत्ता वहिय अलैका मा अफ़लहता अबदन, रवाहु अहमद। यहाँ इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा और उसके हाथ में पीतल का छल्ला बंधा हुआ था। एक आदमी के हाथ में पीतल का छल्ला बंधा हुआ था जिससे वो शख्स मिनल हुम्मा, बुखार आने की वजह से वो बांधे हुए था। या इसको ऐसे कहें कि एक आदमी को देखा, उसके हाथ में पीतल का उसके हाथ में एक छल्ला बंधा हुआ था पीतल का। आपने कहा ये क्या है? उसने कहा वहन नामी एक बीमारी है और इसी की हिफाजत व सियानत के लिए मैंने इसको पहन रखा है कि ये बीमारी बढ़े ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे उतार दो, ये तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता बल्कि तुम्हारी कमज़ोरी में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा। ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, तुम्हारी कमज़ोरी में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा। और एक बात और जान लो कि इस छल्ले को पहने हुए अगर तुम्हें मौत आ गई तो तुम कभी नजात ना पा सकोगे। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि अन्नहु रआ रजुलन फ़ी यदिही ख़ैतुम मिनल हुम्मा फ़क़तअहु। वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में देखा कि वो एक धागा बांधे हुए था, और वो धागा किस वजह से बांधे हुए था? कि बुखार की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस धागे को काट दिया, तोड़ दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आयत करीमा की तिलावत अल्लाह की इस आयत करीमा की तिलावत की। आपने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि बहुत सारे लोगों का मामला ये होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आते हैं लेकिन उस ईमान की मुकम्मल हिफाजत न करते हुए उनका मामला क्या होता है कि वो मुशरिक होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के साथ साथ वो शिर्क में घिरे होते हैं। अरब लोग बच्चों को नज़र बद से महफूज रखने के लिए उनके गले में कौड़ियाँ भी बांधते थे। इस्लाम ने इस अमल को बातिल और फजूल भी करार दिया, ये दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ यानी बुखार से बचने के लिए, बुखार से बचाव के लिए लोग धागा बांधते थे, शरीयत ने इसकी भी मजम्मत की। और वहाँ जो कहा गया है इससे पहली हदीस में कि मिनल वाहना,
वहन नामी एक बीमारी होती है, जिसका मामला ये होता है। अल्लामा इब्नुल असीर अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाहना एक ऐसी बीमारी है जिसमें कंधे या पूरे बाजू की रग फूल जाती है। तकलीफ़ से नजात के लिए दम भी लोग करते हैं, लेकिन बाज़ अहले इल्म का कौल है कि कोहनी और कंधे के दरमियानी हिस्सा में बाज़ औक़ात तकलीफ़ हो जाया करती है। ये तकलीफ़ मर्दों को होती है, औरतों को नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को छल्ला पहनने से इसलिए मना किया था कि उसने वो छल्ला वहन नामी बीमारी से नजात के लिए पहना था, ताकि वो उस बीमारी से महफूज हो जाए और वो बीमारी उससे ख़त्म हो जाए। छल्ले का बीमारी से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं होता है। ऐसे ही बुखार की वजह से कोई शख्स धागा बांधे, इसकी भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। छल्ले और धागे का शरई हुक्म क्या है? इसका शरई हुक्म ये है कि ये हराम है, और अगर कोई शख्स छल्ला या धागा पहनता है और उसका मामला ये है कि वो एतक़ाद रखता है कि ये छल्ला और धागा ख़ुद मौस्सिर हैं, इंसान हमको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अल्लाह के अलावा, तो वो शख्स मुशरिक होगा, शिर्क अकबर में मुलव्वस होगा, तौहीद रुबूबियत में शिरक करने वाला गर्दाना जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई शख्स उस छल्ले और धागे को एक वसीला समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुल समझता है, तब भी शरीयत ने उससे मना किया है, और वो शिर्क असगर में मुलव्वस होगा। अगर उस धागे को सबब मानता है या छल्ले को सबब मानता है तो शिर्क असगर में मुलव्वस होगा। शरीयत ने इससे भी रोका है। और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना कुल समझने की शरीयत ने तलकीन की है। क्योंकि जो शख्स छल्ला या धागा बांधेगा, यकीन जाने कि उसके दिल से उसका ईमान निकल जाएगा, वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता है। और आज नहीं तो कल ज़रूर बराबर छल्ला और धागा बांधने वाला उसी छल्ले और धागे पर मुकम्मल ईमान और यक़ान कर सकता है। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल उलूहियत, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल रुबूबियत, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुकम्मल खालिक, मालिक और राज़िक मानने में एक इंसान को शुबहा आ जाएगा। और इस शुबहे से बचने के लिए शरीयत ने साफ़ इजाज़त दी है कि ऐसी चीज़ों से शरीयत ने साफ़ तौर पर ऐसी चीज़ों से रोका है। एक इंसान को इससे एहतियात और एहतराज़ करना चाहिए। बारी ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शिरकिया उमूर से, शिरकिया आमाल से, शिरकिया अफ़आल से हिफाजत फरमाए, और हम सब को पक्का सच्चा मुवहिद बनाए। हम और आप एक अल्लाह के मतवाले हो जाएं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुण गाने वाले बन जाएं, और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इस धरती पर जिसकी भी इबादत की जा रही है, उससे हम अपना रिश्ता और नाता जोड़ने वाले ना बने, बल्कि उससे हम दूर रहने वाले बन जाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।